ठीक है, तो बाकी लोग धीरे धीरे साथ में हमारे जुड़ते रहेंगे। और हिमानी ने अपना मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, एंड प्रिसाइजली डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। एंड उसके बाद से लेके अब तक हिमानी के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितनी भी ज्यादा चीजें बताऊंगा उतना कम है, क्योंकि इट हैज बीन एन अमेजिंग जर्नी विद हर। और साइकोलॉजी में जिस तरीके का कमांड और जिस तरीके का एक्सपीरियंस ऐसे व्यक्तियों को चाहिए रहता है जिनको वी आर ऑलवेज सीकिंग आउट, तो शी इज वन ऑफ दोज पीपल। सो हिमानी, वेलकम to the session. Thank you so much for such a beautiful introduction. Thank you so much. And मैं हिमानी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक बार बाकी लोग जो नहीं जानते हैं उनको भी कुछ चीजें तुम्हारे बारे में पता चले, तो would you please introduce yourself? Sure. So adding on to what Amit said, my name is Himani Bector. I have done my bachelor's and my master's both from DU, and I did my master's in applied psychology from South Campus, Delhi University. And right now I'm preparing for my MPhil exams. So I'm on a break for the past 1 year, wherein I have tried to kind of relax myself and prepare myself more. Because last year I did give my MPhil examinations, but I didn't think I was prepared enough, and which was also evident by my result at that time. So I took 1 year off, took some rest, prepared more, and I'm preparing and appearing for MPhil again this year. बिल्कुल, थैंक यू सो मच हिमानी। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक बहुत ही एप्रीहेंसिव चीज जो पिछले 3-4 महीने से रही है वो यही रही है एग्जाम्स को लेके, कि कोविड-19 के सिचुएशन में किस तरीके से एग्जाम लिया जाएगा, क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड जिसके बारे में इतनी सारी बातचीत हमें सुनने को मिली, क्या वो सारी की सारी चीजें फॉलो हुई या नहीं। तो मैं आपसे ओवरऑल ये जानना चाहूंगा कि पूरा एक्सपीरियंस आपका घर से निकलने से लेके और एग्जाम सेंटर तक का किस तरीके का था। Well, I would say it was better than what I expected it to be. Like I went in with the mindset when I went yesterday for yesterday's exam. मुझे नहीं लगा था कि इतना preparedness होगा. They were prepared. They were taking precautions. Of course, they weren't all up to how they said they would be taking it. But yes, they did take a few precautions, which, if you look in a larger picture, they are appropriate. But one thing I would also like to point out is what I also observed yesterday, कि don't just rely on the institute taking their precautions. Even you yourself have to take a lot of precautions, because एक चीज जो मुझे बहुत evidently दिखी वहाँ पे वो ये थी कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में काफी ध्यान रखा जा रहा था जब आप इंस्टीट्यूट के अंदर जा रहे थे। बट ये था कि जब वो टीचर्स थे तो टीचर्स वर इंस्ट्रक्टिंग यू टू मेंटेन अ डिस्टेंस एंड वॉक अहेड, बट जब कोई वहाँ पे सुपरविजन नहीं है तो बच्चे बिल्कुल बिना सोशल डिस्टेंसिंग के आराम से चलते जा रहे हैं, विच इज रिस्की। And you don't expect people, who are learned enough to know it's important to maintain that distance right now, to not do that. So I would suggest कि do keep that in mind as well, क्योंकि you can't expect the institute to take all the precautions. उनकी भी limitations हैं ही हैं, considering कि there were so many kids who appeared for the exam. तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने level पे भी रखें. But coming down to the experience one by one, हाँ, थर्मल स्क्रीनिंग को लेके दे वर वेरी वेरी पर्टिकुलर। लाइक अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा, हाँ, एक बार हिमानी बोलिए, मेरे ख्याल से। Am I audible? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं कह रही थी कि लाइक yesterday when we went in for the exam, तो one thing which happened was कि yesterday like there were 2 exams, पहले NIPSET का था और फिर MPhil का था। तो there were a lot of people who appeared for both and I was also one of them. तो जब हम पहला पेपर करके आए तो when we were appearing for the second paper, तो obviously MPhil के लिए there were a lot of more people. तो क्यू इतना बड़ा हो रहा था that you couldn't form a queue in front of the institute. तो उन्होंने ये मेंटेन करते हुए कि डिस्टेंस लगे, तो there was a small छोटी सी गली लग के थी साथ में इंस्टीट्यूट के साथ, तो they ensured कि सब डिस्टेंस के साथ वहाँ खड़े हो जाए. Again, candidates were not maintaining, but there were 2-3 people who were checking के distance आए. अब हुआ क्या, because it was in the afternoon time and it was very hot yesterday. तो normally भी आपका body temperature बहुत high हो जाता है, क्योंकि normally भी candidates बहुत anxious होते हैं. तो वहाँ पे ये हुआ कि वो जितना check करे हर दूसरे बंदे का 99 के ऊपर temperature आ रहा था. And it was funny because
वो आपको 99 से ऊपर टेम्परेचर के साथ दे वोंट सेंड यू इन, दे वर सेटिंग अस असाइड। लाइक जैसे मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मेरा सुबह थर्मल स्क्रीनिंग हुआ था, इट वाज परफेक्ट, आई वेंट इन फॉर द एग्जाम। बट जब मैं दूसरे एग्जाम के लिए गई, माय टेम्परेचर वाज हाई एंड दे आस्क्ड मी कि आप साइड में खड़े हो जाओ, थोड़ी देर बाद वील टेक योर टेम्परेचर एंड देन वील सेंड यू इन, बिकॉज दे कांट टेक दैट रिस्क। तो इतनी स्ट्रिक्टनेस जरूर मेंटेन की गई वहाँ पे। लाइक आफ्टर अ वाइल जब हम थोड़ा काम डाउन हो गए, वी ड्रैंक सम वाटर, कूल्ड आवरसेल्व्स डाउन, फिर हमारा दोबारा टेम्परेचर चेक हुआ, देन इट वाज बैक टू नॉर्मल, सो दे सेंट अस इन। तो थर्मल स्क्रीनिंग को लेके दे वो पर्टिकुलर ये फॉलो हुआ था। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको वो अच्छे से पूरा चेक भी करेंगे, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है एक एंट्रेंस इंस्टीट्यूट का, जो आपको पूरा चेक करते हैं टू चेक इफ यू आर कैरिंग समथिंग और नॉट। सैनिटाइजेशन उन्होंने अंडर एंटर करते ही एक बार करा दिया था, एंड दैट वाज आल्सो वेरी गुड कि लाइक यू जस्ट हैड टू टैप विद योर फुट, द सैनिटाइजर वुड कम आउट, यू वोंट सपोज टू टच एनीथिंग। सो ऑल दैट वाज गुड। ये भी चेक किया जा रहा था कि आपके ग्लव्स पहने हैं आपने कि नहीं पहने हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो that ways it was good. Institute was taking good precautions that way, but जैसे कुछ छोटी चीजें थी, जैसे कि आप अंदर जाएंगे रूम के अंदर, तो उन्होंने ये भी मेंटेन करके रखा था कि आप डिस्टेंस के साथ तो बैठे, बट जैसे कल के पेपर्स में इतने सारे बच्चे नहीं आए थे, तो ये भी किया जा सकता था कि आप रोज में भी कम कम नंबर कर दीजिए। मतलब आई थिंक देवर अराउंड 10 to 15 पीपल ओनली इन माई रूम एंड इट वॉज अ ह्यूज रूम, so they could have shifted us थोड़ा और separately distance देके, वो नहीं हुआ। they kind of kept us to the system that was allocated to us according to our roll number, लेकिन उसमें भी distance था, जैसे आपके बगल वाले सिस्टम पे नहीं बिठाएंगे, एक छोड़ के दूसरे पे बिठाएंगे, तो वो था। बट जैसे रूम जैसे कहा जाता है, जब हमने स्टार्टिंग में केसेस भी पढ़े हैं कि आपको एक वेल वेंटिलेटेड रूम में बैठना बहुत जरूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब आप स्पेशली कोविड की सिचुएशन की बात करते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे क्योंकि वायरस बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है एयर के अंदर, तो कैच करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो वहाँ पे नहीं था, आज उन्होंने विंडोज वगैरह सब बंद करके ऐसे कवर कर रखे थे, जैसे पुराने टाइम में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए दे कवर एवरीथिंग, तो उन्होंने वही कर रखा था, उन्होंने ओपन नहीं कर रखा था। तो वो एक चीज थी, क्योंकि कमरे में और कोई जगह नहीं थी फॉर द वेंटिलेशन टू बी देयर एक्सेप्ट द रूम, और वो भी काफी अंदर जाके था, तो वो एक मुझे लगा माइनस पॉइंट। बट उसके अलावा प्रिकॉशंस उन्होंने अपनी तरफ से दे डिड टेक वेल प्रिकॉशंस, वो उन्होंने ली थी। एंड हिमानी, जो एडमिट कार्ड पे जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए थे, तो उस जैसे मुझे कल पता चला कि जैसे निपसेट के एग्जाम में वन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस वाज कि आपके पास आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, तो क्या इस तरीके के कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड पे भी आरएमएल के थे? हमारे आरएमएल में भी थे एंड दे डिडंट चेक इट, जबकि मेनी पीपल डिड कैरी इट। बट आई थिंक जैसे स्नेहा कल बता रही थी कि शी हैड कैंडिडेट्स हु हैड कम फ्रॉम अदर सिटीज एज वेल। मेरे सेंटर पे देयर वर ओनली पीपल फ्रॉम दिल्ली ओनली, सो मोस्ट ऑफ देम डिड कम विद देयर पेरेंट्स। तो वो चीज़ मुझे इतनी प्रोमिनेंटली नहीं दिखी, बिकॉज दे हैड देयर पेरेंट्स, सो दे कुड हैंड इट ओवर वापस। बट ऑफ कोर्स जो लोग अकेले आए हैं उनके लिए इट वाज प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज इवन आई डिडंट हैव दैट ऐप, और उन्होंने इतना मैंडेटरी करके उसको बोल्ड में लिखा, दे सेड दैट इट वाज मैंडेटरी, यू हैड टू हैव दैट ऐप, एंड इवन आई डिडंट हैव दैट, सो यू डाउनलोडेड इट बिफोर हैंड एंड वी वेंट इन पूरा फिल इन करके। बट व्हेन आई आस्क्ड के लाइक आर यू चेकिंग इट, तो मैंने पहले नहीं, मैंने दूसरे एग्जाम के लिए भी पूछा, आई आस्क्ड फॉर बोथ द एग्जाम्स, बट दे सेड हम कुछ नहीं देख रहे, अब अंदर चले जाइए। तो ठीक है, बट सिंस दे वर पर्टिकुलर अबाउट थर्मल स्क्रीनिंग, आई गेस इट वाज ओके, बट yes, it was not checked over there also, जबकि लिखा था एडमिट कार्ड में कि it was mandatory। बिल्कुल। और एक बस इसी चीज से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन ये कि क्योंकि जिस तरीके से वो लोग चेकिंग कर रहे थे, चीजें ध्यान रख रहे थे, नॉर्मल सिचुएशन में भी मुझे अभी भी याद है इन वन ऑफ द एग्जाम्स हम लोगों को हमारी बेल्ट निकालने को कह दिया था, कोई अगर हाथ में अंगूठी घड़ी कुछ भी है वो सब निकालने को कह दिया था। तो इस तरीके की चीज पे आप कुछ अगर बेसिक इंस्ट्रक्शन जो लोग देख रहे हैं उन्हें कुछ बताना चाहें, इस तरीके का अगर कुछ था आरएमएल के लिए? तो आरएमएल में उन्होंने बेसिक चेकिंग की तो थी, लाइक उन्होंने जब साइड में जाके व्हेन दे चेक यू विद द मेटल डिटेक्टर एंड एवरीथिंग टू सी इफ यू आर कैरिंग एनीथिंग इलेक्ट्रॉनिक, तो उन्होंने बोला भी था कि आप अपने एक साइड से अपना मास्क हटा के दिखाइए, तो उन्होंने वो वैसे चेक किया था। बट आई थिंक दैट वाज इट, उससे ज्यादा नहीं। बाकी वो मेटल डिटेक्टर से ही चेक करें, दे आर अवॉइडिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट जितना वो कर सके। मतलब आई डोंट थिंक किसी के साथ हमारे ऐसे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है, लाइक इवन फॉर द टाइम व्हेन दे आर टेकिंग अ फोटोग्राफ्स, लाइक इस बार क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट था, तो दे हैड दिस थिंग कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन हर कैंडिडेट का वो दोबारा रजिस्ट्रेशन या चेक करते हैं फोटो लेके, और जाने से पहले भी आपका वेरिफिकेशन होगा
उसके बाद ही आप एग्जाम छोड़ के जा सकते हैं सेंटर, अदरवाइज आपका पेपर काउंट भी नहीं होगा। ओके। तो उस टाइम पे जैसे हमारे वो कंप्यूटर के कैबिनेट्स बने होते हैं ऑफिसेज में, वैसे उन्होंने बना रखे थे, और वो आपको उधर बिठाएंगे, बीच में एक वॉल होगी, खुद टीचर यहाँ बैठी होगी, तो जब आपको मास्क लगा निकाल के अपनी फोटो भी खिंचवानी है तो लाइक इट वाज वो सेफ इनफ दैट यू प्रॉपर कुड सेफ था, क्विकली टेक इट ऑफ। हाँ, यू दे कुड क्लिक अ फोटो और इमीडिएटली वापस उसे डाल दीजिए, तो उस हिसाब से इट वाज गुड। बिल्कुल। थैंक यू सो लाइक मच फॉर माई हिमानी। सेंटर इट वाज, बट आई थिंक कुछ सेंटर्स पे शायद इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हुआ था। लाइक एट माई सेंटर टचवुड थिंग्स वर बेटर फॉलोड, सो इतना दिक्कत नहीं हुआ। बिल्कुल। एंड इस चीज में तो हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि सारे लोग एटलीस्ट बेसिक नेसेसरी जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो ले सकें। बिल्कुल। एंड साथ में हिमानी अब मेन चीज आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। तो मैं सबसे पहली चीज ये जानना चाहूंगा कि थोड़ा आप बेसिक अगर क्वेश्चन पेपर का बताएं कि कितने सवाल थे, क्या नेगेटिव मार्किंग या किस तरीके का कोई चैलेंज अगर आ रहा था क्वेश्चन पेपर को एक्सेस करने में या इस तरीके की चीजें। तो सी कंपेयर टू लास्ट ईयर, बिकॉज मैंने लास्ट ईयर भी आरएमएल का एग्जाम दिया था, हाँ। तो उसके कंपैरिजन में दिस ईयर्स पेपर वाज very very easy, and there's a reason I said very very easy, because last year I think RMS paper was the toughest one for so far. Like they had proper questions, you know, that you थोड़ा were बीच में कट गया है, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में से आप अगर प्लीज कंटिन्यू कर सकें कि अब आ लास्ट रही ईयर है के आवाज? कंपैरिजन। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, so last year के comparison में this year's paper was a lot easier, जी। because last year's paper I think from all the papers that I did give for MPhil, RMS was the toughest. बिल्कुल। उस हिसाब से क्वेश्चंस थे, जिसके हिसाब से यू नीड टू बी वेरी थरो विद ऑल योर कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड इवन आरएम एंड स्टैट्स, बिकॉज लास्ट ईयर उसमें स्टैट्स के कैलकुलेशन के क्वेश्चंस बहुत आए थे। लाइक आरएम एंड स्टैट्स वर फॉर्म्ड अ मेजर पार्ट ऑफ द पेपर लास्ट ईयर, बट इस ईयर देयर वर नो सच क्वेश्चंस फॉर दैट मैटर, दैट वाज इजी। एक डिस्क्रिपेंसी जरूर आई थी कि जब हमारे पास एडमिट कार्ड निकला था एमफिल के लिए, तो दे मेंशन्ड इट इन द इंस्ट्रक्शंस कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द पेपर। लास्ट ईयर आरएमएल में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, एंड आई थिंक जहां तक मुझे याद है कोई नहीं थी, एंड कल के पेपर में भी नहीं थी। बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट वाज मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड कि नेगेटिव मार्किंग होगी, देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। लाइक जब हम लॉग इन करते हैं पेपर में, तो जैसे हमने लॉग इन कर दिया, हमारा पेपर कंफर्म हो गया, टेस्ट स्टार्ट हो गया, तो टीचर्स वर सेइंग कि नेगेटिव मार्किंग होगी, जबकि एग्जाम इंस्ट्रक्शंस में भी जो कंप्यूटर पे डिस्प्ले हुई थी जस्ट बिफोर द पेपर, उसमें लिखा था कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द पेपर। तो बच्चे वहीं कंफ्यूज हो गए कि एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग है और कंप्यूटर वाली में लिखा है नहीं है, तो क्या होगा। तो इन्विजिलेटर्स ने बोला कि नेगेटिव मार्किंग है, आपके एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शन में लिखा है तो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो पेपर स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद जैसे ऊपर आप लिखते हैं, तो जहाँ क्वेश्चन आता है वहाँ पे छोटी सी विंडो में ऊपर बिल्कुल आपके क्वेश्चन के ऊपर लिखा होता है कि फॉर करेक्ट आंसर यू आर अवॉर्डेड दिस मच मार्क्स, एंड फॉर अ नेगेटिव आंसर नेगेटिव मार्क्स इज 0। उधर 0 भी लिखा था। अब क्योंकि मैंने सुबह का पेपर दिया था, तो मैंने देखा था कि सुबह वाले पेपर में, क्योंकि निपसेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग थी, वहाँ पे -1 था। अब इस वाले में 0 था, तो मैं थोड़ा और कंफ्यूज हो गई। तो आई आस्क्ड माय इन्विजिलेटर कि मैम ये ऐसे हो रहा है, तो शी सेड नहीं, नेगेटिव मार्किंग है। देन आई टोल्ड हर कि मैम मैंने सुबह का पेपर भी दिया था और सुबह वाले में नेगेटिव मार्किंग थी, तो यहाँ -1 आ रहा था, अब यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आप एक बार किसी और से कंफर्म कर लीजिए कि है कि नहीं है। तो देन शी गॉट समबडी एल्स, तो उनसे जब मैंने पूछा तो ही टोल्ड मी कि नहीं, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट दिस वाज ओनली क्लैरिफाइड टू मी एट दैट टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा डिस्टेंस आई कुडंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, तो ही जस्ट टोल्ड मी कि अगर नहीं लिखा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आई स्टार्टेड विद माई पेपर। About 1 or 1.5 hours into the paper, it was officially announced to everybody, all the candidates, कि negative marking paper में नहीं है। वो काफी देर बाद हुई, तो वो क्लैरिटी नहीं थी, जिससे वो भी दिखा, क्योंकि आई थिंक ये चीज तो काफी बच्चे और कैंडिडेट्स भी बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से आईपी ने अपने पेपर किए, वो बहुत जल्दी किया। लाइक और वो अनप्रिपेयर्डनेस उनके क्वेश्चन पेपर्स में भी दिख रही थी, और वो कल जैसे चीजें हैंडल हुई है उसमें भी दिख रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप थोड़े एंशियस माइंडसेट से थोड़े बहुत तो कैंडिडेट्स जाते हैं, और फिर कंफ्यूज हो जाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आपकी टेंशन ईज हो जाती है। बिल्कुल, आप आराम से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब पहले उसी में कंफ्यूजन में बच्चे इतने चले गए, और 1.5 घंटे बाद दे गेट टू नो के यू नो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी नेगेटिव मार्किंग। तो इतनी जितनी खुशी होती है कैंडिडेट्स को, उतनी भी नहीं हुई, बिकॉज दे वर लाइक कि हम शायद जल्दी पहले से ज्यादा अच्छे से कर लेते, क्योंकि यू नो द पीक एनर्जी एंड कॉन्सेंट्रेशन इज ड्यूरिंग द इनिशियल आवर्स।
तो वो थोड़ा बहुत और लगा बिकॉज आई हैड नेवर सीन इट इन एनी ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, स्पेशली जब एमफिल का पेपर हो रहा है, तो वो कंफ्यूजन बहुत क्लियरली दिखी कल. बिल्कुल. बट कमिंग बैक टू द पैटर्न ऑफ द पेपर, इट वॉज ईजी एज इन. बट एक चीज मुझे बहुत लगी कल के पेपर में, जैसे कल के पेपर में there was a lot of emphasis on social work in terms of the questions that were formulated. Like about 10 to 15 questions would have been related to social work, I think, कल के पेपर में, which was quite odd because एक point के बाद I was like कि I don't remember कि मैं MPhil in clinical का पेपर दे रही हूँ कि MPhil in clinical social work का पेपर दे रही हूँ. Because clinical psychology के पेपर में आप expect नहीं करते हो कि social work पे इतना questions आएंगे. And there were a lot of questions on it yesterday. उसके अलावा majorly I think there was a lot of emphasis on I tried to jot down as many questions and topics as I could remember from yesterday's paper. So there were a lot of questions on defense mechanisms. I think 4 or 5 questions were there just based on the defense mechanisms. Like they'll give you certain examples. वो आपको एक example quote करके explain कर देंगे and then they'll simply ask you what defense mechanism is this person indulging in or using. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन, और आई थिंक आपको बहुत इजीली पढ़ के ही पता चल जाएगा कि कौन सा हो रहा है. ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दिया, वेरी स्ट्रेट टू द पॉइंट सिंपल एग्जांपल्स वर देयर. उसके अलावा देयर वर सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया पूरे पेपर में. सिर्फ एक ही कैलकुलेशन का क्वेश्चन था विच वॉज जस्ट फॉर कैलकुलेटिंग IQ, which was very funny. Like I literally laughed when that happened because I didn't expect कि MPhil के पेपर में सिर्फ IQ कैलकुलेशन का आएगा क्वेश्चन. बट बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको मेंटल एज दी है, क्रोनोलॉजिकल एज दी है, आपको बस बोला कि IQ कैलकुलेट कर दीजिए. दैट वाज द ओनली क्वेश्चन विच रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, दैट्स इट. उसके अलावा इंटेलिजेंस पे भी कोई क्वेश्चंस नहीं आए. MR से रिलेटेड क्वेश्चन खासकर जो पिछली बार तुमने दिया था और वो काफी रिसर्च और स्टैट्स बेस्ड था. या क्योंकि उसमें प्रॉपर कैलकुलेशंस थे, लाइक उसमें काफी डिटेल्ड कैलकुलेशंस थे लास्ट ईयर के पेपर में, एंड वी डिड स्ट्रगल विद इट. आई मीन थोड़े जब हायर ऑर्डर के आते हैं कैलकुलेशन के क्वेश्चंस तो आपको टाइम भी लगता है और मतलब थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है करेक्ट आंसर पे आना, क्योंकि जिस हिसाब से वो ऑप्शंस देते हैं लाइक कई में तो सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस होता है, तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं. तो उस हिसाब से लास्ट ईयर का बहुत टफ था. इस बार आई एक्सपेक्टेड कि स्टैट्स और RM आएगा गिवन माय प्रीवियस एक्सपीरियंस, बट कुछ नहीं आया था. That was the only calculation question that we had. उसके अलावा सारे simple straightforward questions थे. Sampling method पे I think there were 2-3 questions. Very straightforward again. I think एक convenience sampling पे ही question था. I don't remember the question, but they'll just give you a scenario कि जब इस तरीके की sampling process होती है तो उसे क्या कहते हैं. बिल्कुल. Which is very easy. Social case work और case work management पे बहुत सारे questions थे. Like they'll ask you which was the psychologist who worked most prominently in this field. किसने social work के स्कूल को promote किया, who was the pioneer of the school of psychology. And उस हिसाब से questions थे, काफ़ी थे. They'll give you certain processes के कौन सी techniques use होती हैं. I think case work management में कौन सी techniques use होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं, उस तरीके के questions थे और काफ़ी सारे थे. There must be around I think 10-15 questions तो होंगे सोशल केस वर्क और केस वर्क मैनेजमेंट को मिला के. देवर अबाउट 10 to 15 questions आई थिंक. आई डिडंट कैलकुलेट बट आई थिंक इतने एस्टिमेट के हिसाब से ही थे जितने मैंने देखे, बिकॉज दे वर अकरिंग क्वाइट फ्रीक्वेंटली. उसके अलावा देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन जो जहाँ तक लिमिट था स्टैट्स का कि लाइक 4 ऑप्शंस दे दिए थे दैट विच आर द मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन, मोड और रेंज दे दिया as options. तो the answer was pretty obvious, तो काफी सिंपल था वो भी. फिर एक क्वेश्चन था इसी के अराउंड के स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या मेजर करके देता है डेटा में. अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और वेरी सिंपल आंसर्स आप आराम से चूज कर सकते थे. फ्रॉइड के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पे भी कुछ क्वेश्चंस थे. लाइक फ्रॉइड की थ्योरी से लाइक साइको एनालिसिस से काफी क्वेश्चंस थे, लाइक डिफेंस मैकेनिज्म्स के हो गए, हिज थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पे क्वेश्चंस थे. लाइक एक क्वेश्चन आई थिंक जो कल स्नेहा ने भी रिपीट किया, जो निप्सिड में भी रिपीट हुआ था कि लाइक अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द इड प्रिंसिपल the id is to dash principle as ego is to dash principle, like वही pleasure और reality principle का very simple question. उसके अलावा साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का करेक्ट ऑर्डर क्या है, बस उसके अकॉर्डिंग आपको एक आंसर चूज करना था. अगेन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन.
ग्रुप डायनामिक्स के ऊपर भी कई क्वेश्चन थे, आई थिंक 10-5 क्वेश्चंस थे। हाँ, अराउंड 5-10 क्वेश्चंस उस पर भी थे। लाइक आपके प्रोसेसेस जो हमारे 5 स्टेजेस हैं, जो हम 4 स्टेजेस हैं जो हम पढ़ते हैं, नॉर्मिंग, फॉर्मिंग एंड स्टॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग, वो सारे स्टेजेस पे क्वेश्चन थे। एज इन दे कैन डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड दे कैन आस्क यू कि ये प्रोसेस किस स्टेज में होती है। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन से अगेन डायरेक्ट थे, इतना कोई उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं था अगर आपको वो थ्योरी आती है, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट इट। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी क्वेश्चंस। उसके अलावा देयर वर अ फ्यू वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑल्सो। लाइक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही उनका काफ़ी डायरेक्ट था कि लाइक इन विच मेंटल डिसऑर्डर डज अ पेशेंट्स मूड स्विंग्स फ्रॉम वन सिवियर मूड टू अनदर। काफ़ी स्ट्रेट क्वेश्चन है। हाँ, तो आपको 4-5 क्वेश्चंस दे देंगे, वैसे चूज कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस और थे, जैसे कि एक क्वेश्चन में दे आस्क्ड अस कि which mental disorder according to research in which mental disorders बायोलॉजिकल बेसिस सबसे प्रोमिनेंट माने गए हैं और साइकोसोशल फैक्टर्स का सबसे कम या बिल्कुल ही इन्फ्लुएंस नहीं माना गया है। सो दे गेव ऑप्शंस, आई थिंक मूड डिसऑर्डर, बुलिमिया नर्वोसा एंड schizophrenia, and the fourth option was either both mood disorders and schizophrenia. It was again a very simple question. डिसऑर्डर्स पे इसी तरीके के काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए। कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स पे थे क्वेश्चंस अच्छे से, लाइक 2-3 क्वेश्चंस थे वेर इन दे आस्क यू कि कॉमन फीचर्स क्या हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स के, या व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉमनैलिटी बिटवीन एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया बोथ। डिस्पाइट ईटिंग डिसऑर्डर्स, उनके कुछ सिम्टम्स में जो कॉमनैलिटी होती है क्या है, परसेप्शन ऑफ बॉडी वेट एंड ऑल दैट स्टफ, कुछ कॉमन पॉइंट्स, तो आपको आइडेंटिफाई करना था कौन सा है कौन सा नहीं है। अगेन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस। साइकोथेरेपीज पे कुछ क्वेश्चन थे, एज इन वो आपसे ये पूछ लेंगे कि एक क्वेश्चन था हमारे पास कि इन विच टाइप ऑफ साइकोथेरेपी इज द रेजोल्यूशन ऑफ ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस एसेंशियल। अगेन साइकोएनालिटिक या साइकोथेरेपी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, तो वो भी अगेन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन वही था। एक था कि एक और डायरेक्ट क्वेश्चन था यही कि out of which of the following psychotherapies which one is not used for the treatment of mental disorders, और उन्होंने स्पेसिफाई किया था साइकोथेरेपीज। तो उन्होंने ऑप्शन में जैसे दिया था कि सीबीटी दे दिया, जिस्टॉल दे दिया, एंड आई थिंक ह्यूमनिस्टिक दिया था, एंड एक उन्होंने बीच में डाल दिया था फार्माकोथेरेपी, जिसमें ऑब्वियसली फार्माकोथेरेपी वाज द आंसर, बट वो थोड़ा उन्होंने वर्ड प्ले किया था कि कई बार आप पढ़ते हुए वो साइकोथेरेपी नहीं पढ़ते आप जल्दी जल्दी में, तो की पॉइंट वही था कि कौन सा साइकोथेरेपी यूज नहीं होता। बट स्टिल इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, थ्योरीज रिलेटेड टू मतलब इमोशंस की थ्योरीज ऑफ जेम्स लैंड, शैक्टर की थ्योरी पे थे, कैननबार्ड की थ्योरी पे भी कुछ क्वेश्चंस थे, बट इनडायरेक्ट थे, इजी थे बट दे वर अ बिट इनडायरेक्ट। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मेमोरी के बीच के डिफरेंसेस के ऊपर क्वेश्चन थे कि क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों में। फॉरगेटिंग के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस थे कि लाइक रिट्रीवल के टाइम पे जो फॉरगेटिंग होती है उसका कॉज क्या होता है, उसके कुछ ऑप्शंस दे रखे थे, तो वी हैड टू चूज वन। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को कॉमनली कैसे रेफर किया जाता है, ऐसा एक क्वेश्चन था। पर्सनालिटी थ्योरीज पे भी कुछ क्वेश्चन थे, जैसे एल्पॉट की थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल कि अकॉर्डिंग टू एल्पॉट द पर्सनालिटी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 ट्रेट्स, जैसे सेकेंडरी, कार्डिनल एंड जो ट्रेट्स थे हमारे, उन तीनों में से कौन मतलब, और एक आई थिंक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे 3 उन्होंने, इड, ईगो, सुपर ईगो, ऐसे 3-4 उन्होंने ऑप्शंस दिए थे। यू हैड टू चूज द वन दैट वाज करेक्ट। कटेल एंड फ्रॉइड दोनों की पर्सनालिटी थ्योरी पे भी थे, तो एल्पॉट, कटेल एंड फ्रॉइड की पर्सनालिटी थ्योरीज पे देवर क्वेश्चंस, वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस अगेन। एक क्वेश्चन था जो साइकोफिजियोलॉजी से आया था, आई थिंक 1-2 क्वेश्चंस ही थे, लाइक विच ऑफ द ब्रेन रीजन्स आर इन्वॉल्व्ड और एसोसिएटेड विद इमोशन एंड मोटिवेशन, एंड दे गेव अस 4 ऑप्शन और हमें एक चूज करना था। अगेन इट वाज वेरी डायरेक्ट, इजी भी था। थ्योरीज ऑफ इमोशंस आई हैव टॉक्ड अबाउट। फिर एक क्वेश्चन था कि लॉज ऑफ हेरिडिटी किसने दिए थे, जो मेंडल ने दिए थे, विच वाज आई थिंक वो एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने दे दिया था, तो एग्जाम्पल्स पे भी पढ़ी। आई वुड सजेस्ट कि जो बीच में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, तो दीज आर क्वेश्चंस यू नीड टू बी, यू नो, यू हैव टू गो क्वाइट इन डेप्थ विद द टेक्स्ट ऑफ योर बुक, क्योंकि वरना ये ऐसे हाथ सामने नहीं आता। लकीली आई ऑल्सो डिडंट रीड इट फॉर साइकोलॉजी, मैंने बायो पढ़ी थी तो आई लकीली न्यू दिस, बट फॉर पीपल हु हैवंट गॉन थ्रू इट, क्योंकि उन्होंने साथ में गैल्टन वगैरह का नाम भी दिया था, एंड गैल्टन का नाम हम बहुत प्रोमिनेंटली साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, तो कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट गो थ्रू स्मॉल बुक, क्योंकि छोटे से बॉक्स में वो साइड में एग्जाम्पल में दे देते हैं और वहीं से उठा देते हैं, तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि प्लीज गो थ्रू इन डेप्थ विद योर टेक्स्ट ऑल्सो, क्योंकि कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस दे गिव यू।
उसके अलावा there was one more question, like they asked कि what is the point of commonality between Ebbinghaus, Francis Galton and Sigmund Freud, and they gave three options for it. I don't remember the options. Obvious था आंसर, ये मैं ज़रूर कहूँगी, मुझे exactly याद नहीं आ रही चॉइसेस क्या थी, बट क्योंकि ये तीनों बिल्कुल अलग फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी से आते हैं तो आप सोचोगे नहीं कि कोई कॉमन फीचर है इनके बीच में, बट उन्होंने इस तरीके से फॉर्मुलेट किया था, तो आई मीन उसके लिए आपको क्लैरिटी होनी ज़रूरी है क्योंकि वो काफ़ी ओवरलैपिंग पॉइंट्स थे, क्योंकि बहुत सिमिलर से साउंड कर रहे थे, तो उनमें से एक आइसोलेट करना थोड़ा, उसके लिए आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए कॉन्सेप्ट की, तो आई वुड अगेन एम्फेसाइज के थोड़ा अच्छे से इन डेप्थ पढ़िए। बिल्कुल। क्योंकि इस तरीके के कुछ ही 2-3 क्वेश्चन है, क्योंकि अब इन्हें वो ज़्यादा डिफिकल्ट बना नहीं सकते, तो बस उसे फ्रेम इस तरीके से कर देते थे कि शायद कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि इसमें आप और कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हो इसके अलावा। देन देयर वाज क्राइसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे, लाइक नॉट एग्जैक्टली ऑन क्राइसिस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, बट लाइक उन्होंने सिंपली दिए थे कि दे सेड के like they stated and that they gave a statement कि like sometimes small events can lead to huge crisis in one's life, so which one of the following options have the capability of turning into huge crisis in one's life after a while. तो like उन्होंने उसके I think they gave certain examples of violent acts like domestic abuse and child abuse. One option was tornado or floods. One was I don't remember, 2 options और थे, बट इस तरीके का उन्होंने लाइक साइड करके बोला कि आप एक चूज करिए कि कौन से इन चारों में से ऑप्शंस को, कौन सा ऐसा स्मॉल इवेंट है जो लेटर ऑन इन लाइफ कैन लीड टू अ ह्यूज क्राइसिस इन वंस लाइफ। इसके अलावा क्राइसिस से रिलेटेड एक बेरीवमेंट का भी क्वेश्चन था कि अ बेरीवमेंट दैट इज कॉज ड्यू टू अ क्राइसिस, तो उसमें कौन से बेरीवमेंट के प्रिंसिपल्स या मेथड्स जिस हिसाब से बेरीवमेंट को डील किया जाता है साइकोथेरेपी में, कौन से पॉइंट्स कंसिडर किए जाएंगे एक्सेप्ट, तो फिर उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए थे एंड वी हैड टू चूज वन विच वाज नॉट एप्लीकेबल। तो अगेन उन्होंने कल इस तरीके से, जैसे मैं कह रही थी कि फ्रेमिंग पे उन्होंने थोड़े बीच में ट्रिकी किए थे क्योंकि क्वेश्चंस इन देमसेल्व्स वर नॉट वेरी ट्रिकी, तो जब आप एक बार पढ़ते हो तो कई बार एक्सेप्ट आप पढ़ने के बाद भी जब आप आंसर देखते हो तो आप भूल जाते हो, क्योंकि यू आर रीडिंग थिंग्स विच आर इन कॉन्ग्रुएंस विद व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी गिवन फॉर बेरीवमेंट। तो आई थिंक मैंने भी जब एक बार पहले मार्क किया था तो मैंने उसी अकॉर्डेंस में किया था, जब मैं दूसरी बार रिवाइज कर रही थी अपने आंसर्स तो मुझे रियलाइज हुआ ओके मुझे पता था आंसर क्या है, बट मैंने कोई गलत मार्क कर दिया, तो वही बहुत ध्यान से पढ़िएगा जो लिखा है अगेन। उसके अलावा आई थिंक वही बिहेवियर थेरेपी, जैसे मैं कहती थेरेपीज पे था पहले, तो एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्वेश्चन था कि मेजर एम ऑफ बिहेवियर थेरेपी इज टू डू व्हाट, इज टू अचीव व्हाट, लाइक हमारा बिहेवियर थेरेपी में है कि वी वांट टू एलिमिनेट द अनवांटेड और मैलअडैप्टिव बिहेवियर। तो इस तरीके के 4 थे जिसमें आई थिंक 4 ऑप्शंस दिए थे उन्होंने कि इज इट टू रीच अ सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी और टू गेन इनसाइट और टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड बिहेवियर, और एक और ऑप्शन था इसी तरीके का, अगेन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। देन आई थिंक दीज वर इट, इससे ज़्यादा कवर नहीं हुए, मतलब यही टॉपिक्स उन्होंने मेजरली कवर किया, अदरवाइज आप जैसे एक्सपेक्ट करते हो तो लाइक लास्ट ईयर थे लाइक डोर इन द फुट फिनोमिनन एंड इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत कॉमनली आते हैं, बट फ्रॉइडियन स्लिप्स पे क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत सिंपल, मतलब आई डोंट थिंक इनके अलावा कोई और टॉपिक कवर हुआ होगा, बिकॉज जब हमारी बात हुई थी कि वी वांट टू डू अ लाइव ऑन इट, तो आई वाज सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट दीस क्वेश्चंस, तो इवन आई रियलाइज कि कितना सारा वास्ट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन है जो एड्रेस नहीं हुआ ड्यूरिंग द एंट्रेंस, जबकि उसके अलावा सोशल वर्क और केस वर्क मैनेजमेंट हुआ, जो आई मीन जो आप सोच के नहीं जाते हो कि इस पेपर में आएगा, बट इट वॉज देयर। सो आई थिंक वही है कि आप कुछ छोड़ नहीं सकते, बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली वो कहीं ना कहीं से सवाल उठा के दे ही देते हैं, एंड एट दैट टाइम यू कांट इवन से एनीथिंग, सो या। और इसमें एक सबसे बड़ी जो बात मुझे लगी हिमानी, वो ये है कि काफी बार हम लोग अपनी तरफ से, मतलब बहुत बार बच्चे आते हैं, बोलते हैं, कहते हैं कि सर क्या ये स्टडी मटेरियल परफेक्ट है एमफिल के लिए, क्या ये एग्जाम क्रैक कर हो सकता है स्टडी मटेरियल से, या बता दीजिए कि क्या स्टडी मटेरियल सबसे बेस्ट हो सकता है जो करने के बाद में हमें कहीं और ना जाना पड़े। लेकिन जो ये मेरे ख्याल से अनप्रेडिक्टेबिलिटी है जो एग्जाम की, कि जरूरी नहीं साइकोलॉजी ही, बट अगर नियर बाय एरिया से भी सवाल आ रहे हैं तो काफी बार अब 14-15 सवाल बहुत होते हैं अगर एक पेपर में देखा जाए, तो ऐसे में अगर इतने सवाल आपके नियर बाय फील्ड से आ रहे हैं जिसके लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट माइट बी रेडी ना हो, तो ऐसे में केवल और केवल मेंटल प्रिपेयर्डनेस ही वहां पे ज्यादा इफेक्टिव टूल हो सकता है।
अगर आप वो कामनेस, क्योंकि वो पेशेंस शुरू में ही खो दे, तो फिर पूरे पेपर में वो एंजाइटी झलकेगी आपकी। आप कुछ कह रही थी हिमानी? क्योंकि ऑब्वियसली नहीं, मैं यही कह रही थी आपके पॉइंट में कि स्पेशली जब पेपर बाकी का बहुत इजी हो, जो बिल्कुल। आपको पता है कि आप अच्छे से जिसमें स्कोर कर पाए, एंड देन यू गेट 10-15 क्वेश्चंस लाइक दिस जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू आ गए हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन भी बिल्डअप होती है बिल्कुल। कि यू नो इट द पेपर वाज सो इजी बट दीज आर क्वेश्चंस यू डोंट इवन एक्सपेक्ट फॉर एमफिल पेपर, क्योंकि जो बेसिक सिलेबस, हालांकि इतना कोई डायरेक्ट सिलेबस नहीं देते हैं एमफिल एग्जामिनेशंस के लिए ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट इभास, एंड आई थिंक निमहांस थोड़ा आपको आइडिया देता है, उसके अलावा बहुत क्लियर कट आइडिया आपको नहीं देते हैं इंस्टीट्यूट्स के बिल्कुल। एमफिल के एग्जाम्स में आपसे किस चीज़ के रिलेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप बेसिक टॉपिक्स लाइक जनरल साइक, आरएम, स्टैट्स, सोशल साइक, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ये सारे एरियाज अब हर कैंडिडेट कवर करके जाता ही है। बिल्कुल। बट अब ये एकदम से इस तरीके सोशल साइकोलॉजी पे भी नहीं, सीधा सोशल वर्क पे क्वेश्चंस आ जाना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, और आई थिंक वो कैंडिडेट्स में दिखा भी था। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो बिल्डअप हो ही जाता है बहुत बिल्कुल। नेचुरली, कि जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि फाइनली हो जाएगा, एंड देन यू एकदम से आप इनकाउंटर करते हो कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया एकदम से, तो वो अब वो थोड़ा भी होता तब है। जब बट सिचुएशनल फैक्टर्स इतने सिग्निफिकेंट है, जो खुद में एग्जैक्टली, एंजाइटी प्रोवोकिंग है, तो ऐसे में ये चीज तो काफी ज्यादा। क्योंकि ये भी होता ही है आपको, बिकॉज गिवन द सिचुएशन आप इतने लोगों के पास जा रहे हाँ। हो, पेरेंट्स के साथ भी, पेरेंट्स तो आते ही हैं छोड़ने ज्यादातर के, बिल्कुल। तो वो टेंशन भी रहना कि पेरेंट्स भी एक्सपोज्ड है, मैं भी हूँ, कहीं मैं साथ में ना ले जाऊँ, मतलब वो चीजें तो होती हैं, दे वर एट द बैक ऑफ द हेड। बट आई थिंक जब आप पेपर देने जाते हो तब वो इतना प्ले में नहीं आती। इनिशियली इवन आई वाज थिंकिंग अ डे बैक, आई थिंक एग्जाम से एक दिन पहले मैं भी सोच रही थी ये चीज़ काफ़ी, बट जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो आई थिंक आपका फोकस बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है। उस टाइम वो बिल्कुल। चीज़ इतना प्रोमिनेंटली आपके उसमें नहीं आता, बिकॉज उस टाइम आपका फोकस सिर्फ एग्जाम होता है। बट एक और चीज़ लाइक आई थिंक जो आप बता रहे थे रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस दैट वी इनकाउंटर, जो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, लाइक आई थिंक जो एक चीज़ मैंने लर्न किया अपने लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बाद विद एमफिल एंड दिस ईयर ऑल्सो, टू एक्सपेक्ट अ प्रॉपर एंड परफेक्ट स्टडी मटेरियल जिसमें हर एस्पेक्ट कवर हो जाए एक एंट्रेंस एग्जाम का, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। बिकॉज देर आर लाइक आप कितना भी प्रिपेयर होके जाओ, ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि देर विल बी 2 to 3 क्वेश्चंस इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा। बिल्कुल। मैं नहीं कह बिल्कुल। रही बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, बट ये होगा कि आपको उनके बारे में कोई मतलब यू वोंट नो द डेफिनेट आंसर, जिसके लिए आपको अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आपके बेसिक्स से आती है। बिल्कुल। तो आई थिंक बिल्कुल। मैंने यही देखा कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं रिगार्डिंग ऑल दी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, और जो बेसिक फाउंडेशंस हैं हमारी डिफरेंट फील्ड्स के, अगर वो बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो इट बिकम्स मच मोर इजियर फॉर यू टू इवन अटेम्प्ट क्वेश्चंस व्हिच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। बिल्कुल। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बेधड़क एक आंसर को अटेम्प्ट कर सकें। बिल्कुल। तो वहाँ पे आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब वहाँ पे मैं एलिमिनेट कर रही हूँ, लाइक एलिमिनेशन मेथड आई थिंक वर्क्स द बेस्ट इन दीज केसेस, तो एक चॉइस को एलिमिनेट करने के लिए भी आपकी वो नॉलेज बहुत क्लियर होनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट्स को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हैं ही, ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही आइसोलेटेड है। बिल्कुल। तो उस केस में आपके एक बेसिक्स की जो नॉलेज है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक रादर देन गोइंग फॉर अ परफेक्ट स्टडी मटेरियल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम बेसिक्स पढ़ते हैं आप उनको ज़रूर क्लियर करें, क्योंकि इवन फॉर पीपल जिनके बेसिक्स क्लियर हैं और जो ज़्यादातर स्टडी मटेरियल लाइक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स वगैरह के स्टडी मटेरियल्स नहीं लेते हैं, दे आर ऑल्सो एबल टू क्लियर इट सिंपली बिकॉज दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर बेसिक्स। उनका फंडे बहुत क्लियर होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि लाइक यू नो दे नो व्हाट इज गोइंग टू कम और वट एवर, क्या बेसिक्स हैं हर फील्ड के या थेरेपी के, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टडी मटेरियल ले भी तो ये जरूर देखिए कि स्टडी मटेरियल हमें सिर्फ ये हेल्प करते हैं कि जो आप एक पूरे बुक में छोटी छोटी चीजें ढूंढेंगे वो आपको नहीं ढूंढनी पड़ेगी। अगर आपका वो टाइम अगर आपका बच जाता है तो आई वुड सजेस्ट यूज इट मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रादर देन जस्ट मगिंग इट एज वेल। कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ ये ना पढ़ें कि फ्रॉइड अगर बात कर रहा है कि पर्सनालिटी के तीन फैक्टर्स जो इड, ईगो, सुपर ईगो की बात करता है, तो सिर्फ ये ना लर्न करें कि फ्रॉइड के अकॉर्डिंग इड क्या है, ईगो क्या है और सुपर ईगो क्या है। आई वुड सजेस्ट रियली अंडरस्टैंड कि वो किस पर्सपेक्टिव से उसे अप्रोच कर रहा है, क्योंकि जब आपको बुक में वो चीज़ ढूंढनी नहीं, आप वो टाइम अफोर्ड कर सकते हैं कि आप एक डीपर अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की लें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हम इड, ईगो, सुपर ईगो की बात करते हैं तो वो सिर्फ उधर ही खत्म हो जाती है वो बात। आगे की जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो डिफेंस मैकेनिज्म हो या इवन फॉर ड्रीम वर्क, वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स चाहे डायरेक्टली नहीं बट अंडर प्ले तो कहीं ना कहीं करते ही हैं। तो उसके लिए उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है, क्योंकि अगर आप वही वो चीज़ नहीं समझेंगे तो आगे जब जाके वो ड्रीम वर्क वगैरह की बात करेंगे वो चीज़ अगेन आपको क्लियर नहीं होंगी। यू जस्ट बी मगिंग अप कि भाई
पर्सनालिटी के ये 3 फैक्टर्स हैं और ड्रीम वर्क में ये होता है, बट वो क्यों होता है वो आप नहीं समझ पाएंगे. इट्स जस्ट यू नो यू आर रिमेम्बरिंग इट, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट. और इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जहाँ पे आपको कोई ऐसा प्रॉपर नॉलेज या आपको प्रॉपर आंसर नहीं पता, आपको वो बेसिक्स की क्लैरिटी चाहिए जिसके हिसाब से आपके चांसेस टू गेट अ करेक्ट आंसर इवन व्हाइल गेसिंग इंक्रीजेस. So I would really emphasize कि do read the questions that what the examiner is asking you बहुत ही अच्छे से. और कभी कभार क्योंकि इतना टाइम था, like we had 2.5 hours and we just had to do 100 questions, तो टाइम था. एक दो बार आराम से स्टेटमेंट को पढ़िए, आंसर आता हो तब भी पढ़िए, क्योंकि एक बार और पढ़ने में देयर इज नो हार्म, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. और फिर आप ऑप्शंस उसमें चूज करिए. और मैं ये भी जरूर कहूंगी कि रिवाइज जरूर कीजिए, इवन फॉर द आंसर्स दैट यू नो द आंसर फॉर श्योर. रिवीजन करते वक्त उसका आंसर भी जस्ट इन केस चेक करिए, क्योंकि कभी कभी जल्दी जल्दी में आप गलत ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं, जो कई बार ऑनलाइन टेस्ट में हो जाता है. एंड देन लेटर ऑन यू गेट टू नो, ओ गॉड आई न्यू दिस वाज करेक्ट, और पता नहीं कैसे मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी. क्योंकि यू विल गेट इनफ टाइम कि आप इवन 1 या 2 बार आराम से रिवाइज कर सकें. तो हर क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज भी करिए, क्योंकि फॉर 150 minutes फॉर 100 क्वेश्चंस इज अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली जिसमें कैलकुलेशंस भी नहीं करनी. तो लाइक आई थिंक आप अराउंड 40 मिनट्स में या 30 मिनट्स में ही कितने कैंडिडेट्स ने फटाफट से पेपर कर ही लिया था, जो एक राउंड में करते हैं. उसके बाद यू हैव एम्पल टाइम टू रिवाइज इट. बिल्कुल. एंड हिमानी, मुझे मतलब तुम्हारी बात से एक दो चीजें याद आई. जैसे मुझे अभी भी याद है कि मैं खैर ये तो स्कूल टाइम की बात थी, लेकिन एक इंसिडेंट घटा तो उसके बाद से मैं हमेशा बहुत ध्यान रखता हूँ, रिवीजन पे फोकस बहुत ज्यादा करता हूँ. तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे एग्जाम में मैं मतलब इतना इजी क्वेश्चन मुझे सामने दिखा और मैं इतना एक्साइटेड हो गया उस सवाल को देख के कि मुझे तो ये वाला आता है. और वो भी शुरुआती सवाल. जब ऐसा हो ना कि मान लो शुरुआत में पेपर के थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू है. हाँ हिमानी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है. तो मतलब बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में काफी लोग बात करते हैं तो बताते भी हैं कि शुरुआत के जो सवाल हैं वो मूड ऑफ द पेपर डिसाइड कराते हैं कि किस तरीके का मूड आपका ओवरऑल बना रहेगा. तो शुरुआत में मैंने देखा कि भाई बहुत ही इजी सवाल है, मैं एकदम से एक्साइटेड हो गया कि मैंने कहा भाई आज तो मतलब बहुत ही सही पेपर जाना है. और मैंने जल्दी जल्दी में, मुझे आज तक याद है, उसमें सिंपल एक कैलकुलेशन करनी थी. मुझे मैथ्स का पेपर था, मुझे सिंपल कैलकुलेशन करनी थी लास्ट में 3x2, और मैं इतनी एक्साइटेड स्टेट में उसका आंसर दे रहा था. मैंने लिखा 3x2 = 9. और ये मुझे अब तक ध्यान है, मतलब मेरे पापा अब भी ये चीज पॉइंट आउट करते हैं किसी भी एग्जाम में कि 3 to the 9 मत कराना कहीं पे भी. एंड आई स्टिल रिमेम्बर मेरे बैचलर्स और मास्टर्स के एग्जाम के दौरान में मेरा पेपर यूजुअली जल्दी खत्म हो जाता है जब मैं करता हूँ ओवरऑल. तो उसके बाद मैं हमेशा ये चीज सोचता हूँ कि अच्छा ठीक है, जो पेपर कुछ मैंने सवाल सोचे हुए थे ना रिव्यू करने के लिए, मैं सिर्फ वही रिवाइज कर लेता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ. कई बार ऐसा हुआ है कि आपने शायद सवाल ही गलत पढ़ लिया हो और आपको अपने उस समय पे स्टेट ऑफ माइंड इतना हाइपर कह लो, ओवरवेल्म्ड कह लो, हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कामिंग स्टेट ऑफ माइंड, बट नहीं होता है रिलेटिवली. तो ऐसे में आई थिंक इट्स रियली रियली गुड कि आप लोग पूरे के पूरे सवाल को दोबारा पढ़े अगर आपके पास समय है. बिल्कुल, वेरी गुड. सो नहीं, मुझे 3 to the 9 वाला याद आ गया, अच्छा था. तो हिमानी, मैं एक ही चीज तुमसे जरूर जानना चाहूंगा कि काफी बच्चे ऐसे हैं जो इस समय पे कोविड के दौरान में, क्योंकि चीजें एक्सटेंड होती रही थी और हमें किसी भी मोमेंट पे ये नहीं पता था कि पता नहीं कब एग्जाम हो जाए. बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने, जैसे मेरे ख्याल से निप्सट का जो एग्जाम था, एडमिट कार्ड आया और उसके 2-3 दिन बाद एग्जाम थे. तो आरएमएल का भी सेम ही था, दोनों का इकट्ठे ही आया. तो ऐसे में जब बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है लोग, तो कुछ ऐसे भी हैं व्यक्ति जो ये अब लेके चल रहे हैं कि हमें अगले 30 दिनों में या अगले 40 दिनों में अच्छे से प्रिपेयर होके चलना है. तो अब वो जब फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं अपने एमफिल के एग्जाम के लिए, सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस फ्रॉम yesterday's exam, what would you recommend to them अगर वो अगले 30, 40 या 20 दिन में अपनी प्रिपरेशन पूरी करना चाहते हैं, assuming they are exposed to the exam in some form? Okay, then also I'll emphasize that I won't go exactly by yesterday's paper, because like yesterday's paper was, वो मतलब
इट वाज एविडेंट कि वो बहुत जल्दी जल्दी में बनाया गया, तो आई वोंट बिल्कुल टेक इट एज अ क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आल्सो। ऐसा नहीं कि मैं उसे बिल्कुल निगेट कर रही हूँ, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे उसमें जो आपको नॉर्मली नहीं दिखेंगे एमफिल एग्जाम्स में। जिस तरीके के सोशल वर्क वगैरह के क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एमफिल एग्जाम में नहीं आते। यू विल गेट दोस क्वेश्चंस फॉर क्लिनिकल सोशल वर्क, बट यू डोंट गेट दोस क्वेश्चंस फॉर एमफिल इन क्लिनिकल साइक। Still, though I would really recommend, I think what I learned from yesterday's exam कि why to take a risk, जब पता है बिल्कुल कि ये चीज भी बिल्कुल हो सकती है तो डू रीड इट। तो आई थिंक सोशल वर्क हम नहीं पढ़ के जाते, तो अगर आपको क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा पुराना रिवाइज करके ये भी नया पढ़ लें, तो आई वुड सजेस्ट कि बेसिक जो इम्पोर्टेंट होता है उस फील्ड ऑफ स्कूल को लेके, लाइक पायनियर कौन था उस फील्ड का, बेसिक उसके क्या क्राइटेरिया हैं या किन चीज़ों पे वो बेस्ड है, फाउंडेशंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं सोशल वर्क के, बिल्कुल बेसिक थ्योरीज क्या हैं जो मेजर हैं, आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया रहे कि वो है क्या। क्योंकि एक पेपर में जो हुआ, मैं नहीं कहती वो दोहराया जाएगा। अगेन आई सेड डोंट टेक इट एज आई वोंट टेक इट एज अ मार्कर फॉर सेटिंग फॉर आगे की प्रिपरेशन कैसे करें, बट आई मीन वही है ना कि जब आप एक बार एक्सपीरियंस कर लेते तो यही रहता है कि एक बार मैं पढ़ लूंगी तो मेरा कुछ जा नहीं रहा। आई बिल्कुल मीन यूर ओनली गेनिंग नॉलेज, मे बी यू बिल्कुल वोंट अप्लाई इट इन दी रिसर्च पेपर, बट आप कहीं ना कहीं तो उसे अप्लाई करोगे ही। बिल्कुल एक्स्ट्रा नॉलेज नेवर हर्ट्स। तो थोड़ा बहुत आप उसका आइडिया जरूर लेके चलें, क्योंकि क्या पता किसी और एमफिल पेपर में भी ये हो जाए, क्योंकि आई थिंक अब बिल्कुल सभी बहुत जल्दी जल्दी पेपर्स जल्दी बना रहे जल्दी हैं गिवन दी बिल्कुल सिचुएशन, बिल्कुल और क्योंकि बिल्कुल सबका बहुत डिले हो गया है। बिल्कुल तो आई थिंक थोड़ा हम भी अनएक्सपेक्टेड तरीके के पेपर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार इंस्टीट्यूट से। शायद आरएमएल से तो मुझे यही सीखने को मिला, तो मे बी यू कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम इभास एंड निम्हांस ऑल्सो। मतलब चांसेस बहुत कम है गिवन दैट दे हैव गिवन यू अ प्रॉपर टाइम लिमिट। जैसे आई थिंक इभास की डेट जब चेंज हुई है वेल इन एडवांस हमें बता दिया गया था। आई थिंक 25 तक पता चल गया था कि पेपर पोस्टपोन हो भी, मतलब जो नया सेंटर है वो कब है और डेट कब है वो भी बता दी गई थी। तो और आई थिंक निम्हांस का भी सेम था कि निम्हांस ने आई थिंक बीच में दे ओपन देयर लिंक अगेन फॉर सेंटर रिलोकेशन, जिन्होंने दोबारा कैंडिडेट्स को दिए, जिन्होंने उनमें और सेंटर्स ऐड किए उन्होंने, कि आप एक सिलेक्ट कर लीजिए जिससे हम आपका सेंटर फिर से दोबारा ढंग से रीएलोकेट कर दें, विच वॉज वेरी गुड, क्योंकि ये ऑप्शन हमें कहीं और किसी पेपर में नहीं मिला। और बिल्कुल इस सिचुएशन में एवरीबडी वुड नीड कि हम कहीं बहुत ही पास की जगह, या अगर हमें अपने ही स्टेट में सेंटर मिल जाए तो इट्स बेस्ट। बिल्कुल तो लाइक निम्हांस ने भी वो वेल इन एडवांस करके आई थिंक अराउंड 28 या 29 हमें ये भी नोटिफाई कर दिया कि आपका सेंटर इस स्टेट में पड़ेगा। आपका जो प्रॉपर एडमिट कार्ड है विद प्रॉपर डिटेल्स टू योर सेंटर विल बी गिवन टू यू ऑन 13। तो लाइक उन्होंने आपको इतना टाइम गैप दिया है कि बिल्कुल पेपर 29 को है और इभास का जैसे 20 को है, उन्होंने आपको वेल इन एडवांस बता दिया है, बिल्कुल तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आईपी में ये नहीं हुआ था। आई स्टिल हाँ रिमेम्बर आई वाज टॉकिंग टू माय कजिन, जैसे हम दोनों ही आईपी के मतलब एमफिल के एग्जाम्स के लिए इकट्ठे प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग इंसिडेंटली उस टाइम आईपी के पेपर की ही बात कर रहे थे। आई थिंक इट वाज अबाउट 11, इट वाज अराउंड 11:30 और समथिंग एट नाइट, और इमीडिएटली हम दोनों के फोन पिंग होते हैं, एंड वी सॉ कि हमें लाइक लिटरली रात को 11:30 बजे वी गॉट एन ईमेल कि दिस इज योर सेंटर व्हिच हैज बीन एलोकेटेड टू यू अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, और इस दिन पेपर है। तो विच वॉज वेरी शॉकिंग। तो मेरा ये एकदम से कहाँ से आ गया, बिकॉज बिल्कुल बहुत अब्रप्टली था, क्योंकि 3 दिन बाद पेपर है, इट्स लाइक, और एडमिट कार्ड भी नहीं आया था। दे सेड दे गिव यू द एडमिट कार्ड, और आई थिंक मंडे को एडमिट कार्ड आया है, वेंसडे को पेपर था, और नोटिफाई आई थिंक फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट को किया था। तो बिल्कुल टेक्निकली देखा जाए तो इतना टाइम आपको रिविजन के लिए भी नहीं मिला, क्योंकि थोड़े बिल्कुल टाइम तो आप उसी में शॉक में रह रहे थे, ओके पेपर आने वाले, क्या करूंगी, इतनी जल्दी आ गया, लाइक थोड़ा शॉक तो लगता ही है। तो वैसा सिचुएशन था, बट बाकियों में वी गॉट टाइम अकॉर्डिंगली, कि भास और निम्हांस में गेट एम्पल टाइम टू रिवाइज। हाँ तो आई बिल्कुल वुड सजेस्ट, जो आई थिंक एमफिल पेपर्स में बहुत रिपीट होता है, कि जो आपकी थ्योरीज हैं, लाइक आपकी इवन जनरल साइकोलॉजी की जो थ्योरीज हैं, क्योंकि वो कॉग्निटिव में भी ओवरलैप करती है, हमारी मेमोरी की थ्योरीज, लर्निंग की थ्योरीज पे भी क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल पर्सनालिटी थ्योरीज के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द थ्योरी नहीं पूछते, वो आपसे टेस्ट में इस थ्योरी का कौन सा एस्पेक्ट यूज हो रहा है, या ये टेस्ट जो इस थ्योरी से निकाल के साइकोलॉजिस्ट ने बनाया है वो क्या मेजर करता है, उस बिल्कुल तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि कल आई थिंक, हाँ, एक और क्वेश्चन आया था कल कि व्हाट डज एमएमपीआई इज यूज्ड फॉर, व्हाट इज एमएमपीआई यूज्ड फॉर। तो उसमें 4-5 ऑप्शंस थे। तो एमएमपीआई सिर्फ आपकी पर्सनालिटी ही नहीं मेजर करता, वो आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, जो इंडिविजुअल ले रहा है उसके बारे में। तो इस तरीके के कुछ ऑप्शन थे, जैसे एक में सिर्फ पर्सनालिटी ऑप्शन था और एक में था पर्सनालिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, जिसमें दोनों बिल्कुल एस्पेक्ट्स हैं। तो अगेन उसके लिए वो क्लैरिटी होना जरूरी है। तो ये चीज थी।
आई थिंक एबनॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, लाइक बेसिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिक इटियोलॉजी क्या है, कि अगर उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जैसे डिप्रेशन हो गया फॉर दैट मैटर और स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, तो उसके बायोलॉजिकल बेसिस में अदर देन जेनेटिक्स वो आपको ब्रेन के बारे में बता देंगे। कई हार्मोन्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि डोपामाइन हो गया या सेरोटोनिन हो गया, इन हार्मोन्स के नाम आपको पता होने जरूरी हैं। क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किस हार्मोनल एक्टिविटी इज सपोज टू लाइक irregular hormonal activity supposed to be contributing to the development of this mental disorder. I think ये और इवन फॉर दैट मैटर द मेडिसिन, लाइक कभी कभार बहुत रेयरली बट कभी कभी दे डू आस्क यू के विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन टाइप ऑफ SSRI, दैट इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो जैसे SSRIs आ गए या कुछ एंटी एंजाइटी एंटी साइकोटिक मेडिसिन के जो नाम हैं जो बहुत कॉमन है, वो जरूर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कई बार उन पे क्वेश्चन आ जाता है। चांसेस कम है बट आ जाते हैं, बिकॉज आई थिंक लास्ट ईयर भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। तो और इतनी बेसिक नॉलेज वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आई मीन आप एमफिल क्लिनिकल के लिए दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आपको एबनॉर्मल और क्लिनिकल के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। बट वो अगर आपको क्वेश्चंस देंगे तो यूजुअली इस तरीके के देते हैं जिसपे आपकी वो नॉलेज पूरी अच्छे से चेक करते हैं, जिसकी आपकी प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज है कि नहीं। कुछ सोशल साइकोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन होते हैं, जैसे ग्रुप डायनामिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली, और कुछ सोशल फैसिलिटेशन या सोशल डोपिंग थ्योरी के ऊपर या सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब जहां तक मैंने देखा ज्यादातर इन एस्पेक्ट्स को कवर करता है, तो आप कुछ मेजर टॉपिक्स ऑफ सोशल साइको आप एड्रेस कर सकते हो। उसके अलावा आई थिंक जीपी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के तो आप जितने टॉपिक्स कर सके, जैसे लैंग्वेज के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उस पे एम्फसाइज करिए। उसके अलावा साइकोफिजियोलॉजी में जो हम ब्रेन रीजन्स पढ़ते हैं, जो लोबुलर सिंड्रोम्स हम पढ़ते हैं, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल लोब के, तो चारों लोब्स में कौन सा लोब कौन सा फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या किन फंक्शंस के प्रोमिनेंट सेंटर्स किन लोब्स में है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो साइकोफिजियोलॉजी का जो लोबुलर सिंड्रोम्स है वो तो 100% पढ़ के ही जाए। देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन इट डेफिनेटली इन एनी ऑफ द एमफिल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। कल भी था और आई थिंक आगे में भी होगा। ये क्वेश्चंस 100% आते ही आते हैं। उसके अलावा आई डोंट RM स्टैट्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, बट आई वुड सजेस्ट गो थ्रू द एंटायरिटी ऑफ इट, बिकॉज कई बार क्या होता है, कई इंस्टीट्यूट्स आपसे बहुत इन डेप्थ स्टैट्स की नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। वो आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे कोरिलेशन काई स्क्वायर के ऊपर, जो आप बैचलर्स में भी हम कवर करते हैं, तो उसमें इतना कोई डिफिकल्ट नहीं आते क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस के भी इतने डिफिकल्ट नहीं आते। लेकिन कुछ जगह पे वो आपको काफी हायर ऑर्डर स्टैट्स के क्वेश्चंस दे देते हैं जैसे रिग्रेशन हो गया, फैक्टर एनालिसिस हो गया, कई बार उन पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो RM और स्टैट्स तो पढ़ ही लीजिए अच्छे से, आई थिंक इन डेप्थ। और साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ फेमस टेस्ट हो गए जैसे कि TAT रोशाक इन ब्लॉक टेस्ट और MMPI हो गया। कभी कभार देयर इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो काफी बार एंट्रेंसेस में आता है कि MMPI और CPI में क्या डिफरेंस है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये आई थिंक लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, और अभी जब मैं थोड़े टाइम पहले आई वाज ट्राइंग टू रेफर टू सम मॉक टेस्ट आल्सो, और जैसे जो हम GRE की कैप्लन की बुक से भी वो गोइंग थ्रू, तो उसमें भी ये क्वेश्चन काफी बार आता है। तो ये डिफरेंस पता होना जरूरी है। 2-3 जो वेरी फेमस साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा आई थिंक दैट्स इट। मतलब ये है कि अगर आप अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप बेसिक स्टोन की जो मेजर चीजें हैं वो तो 100% कवर कर ही लें। और RM स्टैट्स में आप बेटर है कि टोटालिटी में ही पढ़ लें, क्योंकि RM स्टैट्स इज नॉट अ वेरी मेजर पॉइंट फॉर देम टू एम्फसाइज ऑन। तो ऐसे में वो किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एम्फेसिस का पॉइंट नहीं है, तो जो पेपर बना रहा है वो कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। तो फॉर यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पूरा क्लैरिटी उस चीज के बारे में, क्योंकि अगर किसी और कॉन्सेप्ट पे कोई और क्वेश्चन है आप फिर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं उसे। अगर आपने डायरेक्टली नहीं पढ़ा है तब भी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ एनी अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। RM स्टैट्स में आप ये नहीं कर सकते, प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। तो आई वुड से कि RM स्टैट्स तो पूरा अच्छे से गो थ्रू करें ही करें। बिल्कुल। हिमानी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये इतनी डिटेल में तो मुझे नहीं लगता कि मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे इस समय पे ऐसा लग रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद RML का पेपर दे के आया हूँ। मुझे सारे सवालों का अंदाजा लग रहा है, टॉपिक्स का अंदाजा लग रहा है। उसके बाद में मतलब ऐसा है कि पूरे तरीके से मैं बहुत सारे सवाल ऐसे लेके चल रहा था कि एक के बाद दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन एक ही चीज के अंदर हर चीज कवर हो रही थी।
तो ये बहुत अच्छी चीज लगी। एंड थैंक यू सो मच कि इतने डिटेल में, इतने सुंदर तरीके से, और जैसा स्नेहा कह रही थी, इतने कामली सारी चीजें बताई हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच। जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ में हैं, मैं आप लोगों से, ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों का कुछ और आप लोगों को पूछना है, जानना है, तो हिमानी का जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी शेयर किया हुआ है। एंड यस, थैंक यू सो मच, आप लोग फीडबैक दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हिमानी को फीडबैक मिले सेशन का, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सारी की सारी चीजें बताई हैं, आई एम श्योर कि उन्हें फीडबैक का अंदाजा तो है ही।